Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. So today I'll start with a new chapter, The Fall of Troy. What is mean by Fall of Troy? Okay, Troy is actually it is the name of a place. Okay, and the Fall of Troy मतलब इसका ये fall का मतलब होता है किसी भी particular प्लेस का क्या हो जाना, मतलब हार जाना है ना, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाना है ना, उसका टोटली डिस्ट्रक्शन हो जाना. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द फॉल ऑफ ट्रॉय हैज अकर्ड. Part 1. There are two parts in this chapter. Part 1. Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or great national war. They often tell of a nation's early history. They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. Okay, means जो epics है, सबसे पहले description given है यहाँ पे. What are the epics? Epics are generally long poems. ये क्या होती है? Long poems होती है और जो related होती है to the deeds of a great national heroes. मतलब जो past time में जो great national heroes और great national war occur हुई थी in that particular war, जिसने भी अपना major contribution दिया था. So related to that, all the description are given in the epics. Okay, means long poem. They often tell of a nation's history, early history, मतलब एक nation की, okay, एक country की जो early previous history रही थी past time में, okay, उसके बारे में क्या करते हैं, epics describe करते हैं. They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. It means कि उनके लिखे जाने के पहले से ही काफ़ी years before वो क्या किए जा रहे हैं, रिसाइट किए जा रहे हैं और संग मीन्स वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के थ्रू गाया जाता है, उसे रिसाइट किया जाता है, उसके बाद एक्चुअली वो क्या हुए, रिटर्न फॉर्मेट में अवेलेबल हुए एपिक्स टू द people. So people can get the knowledge regarding to the past history, past time, early history of a particular nation. Okay, so here in the first paragraph related description is given to the epics. Further, the two famous Sanskrit epics are the Ramayana and the Mahabharata. And the two great epics of European literature written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey. Okay, now further, as the description of the epics are given, there are further example is given. Okay, means there are two examples of Sanskrit epics, Ramayana and Mahabharata. Okay, that is famous in India. And the two great epics of European literature, means European literature जो कि किस language में लिखी गई है, it is written in the ancient Greek language, and they are Iliad and Odyssey. Okay, just as in Indian literature we go back to stories from the Ramayana and the Mahabharata, means जैसे हम लोग Indian literature में अगर हमें past time से related कोई information gain करनी होती है, so we go through the stories written in the Ramayana and Mahabharata. Similarly, so in the literature of Western countries, means Western countries में, European literature में, if they need to go back through the past time, past history, they go back to the Iliad and Odyssey. Okay, just as children all over India know the names of stories of Ram and Sita, जैसे इंडिया में सारे children, मतलब all the children knows the story related to Ram and Sita. Further, Yudhishthira and Arjun and Draupadi. So children in Western countries know the names of Hector and Odysseus. Okay, and जिस तरीके से इंडिया में ये stories famous है, similarly the stories of Hector and Odysseus and Helen of Troy, all these stories are famous in the Western countries, in the European literature. Okay, so the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and Trojans fought for 10 long years. Okay, जो क्या थी, एक मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी वर्ल्ड की, जिसकी वजह से ग्रीक एंड ट्रोजान्स उनके बीच में फाइटिंग, मतलब उनके बीच में वॉर चली थी, दैट लास्ट फॉर 10 years. ओके, मीन्स जो जिसका टाइम ड्यूरेशन जो कितने दिन तक, कितने ईयर्स तक चली थी, 10 years तक चली थी. ओके, नाउ व्हाई ऑल दिस डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिफोर, because in this chapter we are going to study about this particular story, Hector, Odysseus, Achilles and Helen of Troy. Okay, so that is why आपको सबसे पहले explain किया गया है what is the epic. Okay, what is the epic? That is actually a long poem in which we study about the past time, past ancient history of a particular nation. Okay, अब उसकी example क्या हो गई, क्या given है, रामायण and महाभारत. Okay, ये क्या है, epics है, जिसमें क्या है, आपको past story से सुनने को मिलती है related to Ram and Sita etc. Okay, so similarly जैसे Indian culture में ये epics फेमस है, इसी तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कल्चर है, वहाँ पर ये
इलियाड एंड ओडेसी फेमस है, जिसमें कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स है, हेक्टर, ओडिसिस, एचिलिस, हेलेन ऑफ ट्रॉय। जो हेलेन ऑफ ट्रॉय कौन थी, जो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी वर्ल्ड की, जिसकी वजह से ग्रीक एंड ट्रोजान्स क्या किए थे, 10 years तक फाइटिंग किए थे। ओके, सो दैट स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी। Nobody knows for certain who the author of these early epics is. Okay, अब ये जो early epics है ना, इसका author मतलब वो लिखने वाला, उसको particularly describe करने वाला डिटेल में कि क्या हुआ था एक्चुअली। सो उसका जो ऑथर है ये क्योंकि बहुत टाइम पहले लिखी गई, राइट, सो उसका ऑथर क्या है, अननोन है। इट इज थॉट दैट दे अरोज एंड डेवलप्ड विद द नेशन इटसेल्फ। और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये क्या, अरोज मतलब राइज पे आना, धीरे धीरे बढ़ना, है ना, डेवलप होना। क्या हुआ, जैसे जैसे नेशन डेवलप होता गया इन दैट पर्टिकुलर मैनर, वो धीरे धीरे क्या होते गए, डेवलप होता गया, एंड वर हैंडेड डाउन from singer to singer till perhaps one great poet gave their for them their final form. और ठीक है, धीरे धीरे मतलब as we have already studied कि before actually coming into the written form it was sung by the and recited by the people. okay, मतलब लोगों के थ्रू रिसाइट की जाती थी, तो बहुत सारे पोएट ने इसको रिसाइट किया, सॉन्ग मतलब सिंग किया, एंड ऐसे सिंग करते करते लोगों ने मतलब धीरे धीरे इसका जो एक फाइनल फॉर्म, एक फाइनल वर्जन क्या हुआ, रेडी हुआ। ओके, इट इज बिलीव दैट The Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer. Okay, अब ऐसा माना जाता है कि जो इलियाड एंड ओडिसी जो क्या है, इंग्लैंड है ना, जो जो यूरोपियन कल्चर है उनके यहाँ की फेमस एपिक्स है इलियाड एंड ओडिसी, ये किसी के थ्रू कंपोज और रिसाइट की गई थी, एक ब्लाइंड पोएट जिसका नेम क्या था, Homer, named as Homer, okay, who lived about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another. Okay, means जो उनका उनकी लाइफ का जो टाइम था, है ना, वो किस पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है, उनकी लाइफ 900 BC के टाइम से बिलोंग करती है, और जो ग्रीक सिटी से विलेज और अनदर प्लेसेस पे क्या करते रहते थे, वंडर्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते, घूमते रहते थे, ओके, प्लेस चेंज करते रहते थे, सिंगिंग हिज पोएम to all who would receive him and in their homes and give him हॉस्पिटैलिटी। ओके, और जो भी लोग उनको मतलब जैसे कि वो क्या करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो हॉस्पिटैलिटी मतलब किसी को सर्व करना, है ना, किसी की आप खातिरदारी करते, तो जो जहाँ भी वो जाते थे, जो पर्सन उनकी हॉस्पिटैलिटी करते थे, जो उनको रहने के लिए अपने घर में सर्वाइव करने के लिए प्लेस देते थे, और उनके वहाँ पर वो क्या जनरली रिसाइट करते रहते थे, ही वॉज अ ब्लाइंड पोएट। ओके, सो ये पोएम वो क्या करते थे, रिसाइट करते रहते थे। दिस वंडरिंग सिंगर हैज बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री। ओके, और ये जो वंडरिंग सिंगर थे, है ना, जो क्या करते थे, हर जगह वंडर करते रहते थे, घूमते रहते थे, हर जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, वो जाने जाते थे, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी काफ़ी ईयर्स से, नॉट ओनली इन ग्रीस, ना सिर्फ ग्रीस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में, और उनको किस नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री। ओके, अंडरस्टूड प्रॉपरली। अभी हम लोग ने एपिक्स क्या होते हैं, उनके एपिक्स की एग्जाम्पल्स क्या है ना, एग्जाम्पल्स में इंडियन लिटरेचर में कौन सी फेमस है, यूरोपियन लिटरेचर में कौन सी फेमस है। आफ्टर दैट जो इलियाड एंड ओडेसी है उसके ऑथर के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखें। नाउ फर्दर, द इलियाड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, मतलब इलियाड है ना, उसमें किस चीज से रिलेटेड स्टोरी है, इट इज रिलेटेड टू द इलियम और ट्रॉय, राइट, हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले। A rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. Okay, मतलब इसके ये एक ऐसी जगह, ये स्टोरी है जो क्या थी, एक रिच ट्रेडिंग सिटी थी, है ना, ट्रॉय मैंने आप लोगों को पहले बताई, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, सो इट इज अ रिच ट्रेडिंग सिटी। ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेड का जिसका मेजर काम क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, जहाँ पे लोग ज़्यादातर ट्रेड करते थे ना, रिच थी, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी, कहाँ पर, एशिया। ओके, माइनर नियर नैरो सी, एक नैरो सी था, उससे रिलेटेड उसके उसके करीब थी, दैट लीड्स फ्रॉम द एगियन टू द ब्लैक सी। ओके, जो कहाँ से स्टार्ट मतलब कहाँ तक रूल था उसका, एजियन टू द ब्लैक सी तक। ओके, इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। ओके, मतलब क्या थी, ये जो प्लेस थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इन कमर्शियल purpose also and in the agricultural purposes also. Okay, in front of the city was the sea over which sailed the ships of ट्रॉय। ओके, मीन्स उसके सामने क्या थी, इस सिटी के सामने एक सी थी जहाँ पर जनरली वो शिप्स क्या करते थे, सेल करते थे सी में, मीन्स एज इट इज ऑलरेडी मेंशन इट इज अ ट्रेडिंग सिटी, है ना, तो ट्रेडिंग का मोस्टली जो सामान था उनका किसके थ्रू वो सेल करते, किसके थ्रू पहुंचाते थे, थ्रू द शिप्स कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन। जो क्या करते थे, जो बड़े बड़े शिप होते थे वो क्या करते थे, कैरी करते थे गुड और
जो गुड्स मतलब जो सामान रहता था उनका, और एंड ग्रेन मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रहते थे, है ना, जो भी उनके व्हीट, फ्लावर एंड एक्सेट्रा, राइस एक्सेट्रा। एट द बैकरोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ओके, अब वो जो सिटी थी, है ना, एक्चुअली वो किस का क्या उसकी पोजीशन थी, है ना, वो कितनी स्ट्रांग थी फाइनेंशियली एज वेल एज उसका जो आप लोगों को लुक मेंशन किया हुआ है कि वो जो सिटी थी उसके सामने ही सब एकदम सामने क्या था, एक बड़ा सा एक सी था जहाँ जिसके थ्रू वो ट्रेडिंग करते थे, राइट, जिसमें बड़े बड़े शिप्स जाते थे गुड्स और ग्रेन लेके। और उसके बाद फिर बैक में क्या था, एक बहुत बड़ी हाई पीक थी माउंट ईडा की, है ना, जहाँ से बहुत सारे रिवर्स और स्ट्रीम्स निकले हुए थे। ओके, फिर फर्दर द वैलीज अमॉन्ग द हिल्स वेर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल। और जो वैलीज थी, है ना, जो वैलीज थी वो भी क्या थी, वेल वाटर्ड, मतलब जो अमॉन्ग द हिल्स दे वेर वेल वाटर्ड, वहाँ पे पानी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल था, और फर्टाइल थी, फर्टाइल मतलब जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कल्टीवेशन, है ना, जो उपजाऊ ज़मीन बोलते हैं हम लोग, है ना, जहाँ पे अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर किया जा सकता है, विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मीडोज व्हाइल शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। और क्या मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट सिंस इट वाज फर्टाइल, वहाँ पे कॉर्न ग्रो करते थे फर्टाइल लैंड्स में, है ना, और कैटल भी फीड करते थे ग्रासेस, जो ग्रास निकलती थी, है ना, इन द ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स, वो भी क्या करते थे, वो जो कैटल मतलब जो एनिमल थे, है ना, शीप थे, वो क्या करते थे, वो ग्रास को क्या करते थे, फेड करते थे, खाते थे, यूज करते थे एज देयर फूड। ओके, तो सिटी है उसका ऑल एंड ऑल आपको उसकी क्या कंडीशन थी वो बताई हुई है, मीन्स इट वाज रियली वेल डेवलप्ड एंड वेल situated country city. Okay, further round the city the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. Okay, अब देखो, अब सबसे पहले क्या मेंशन कर दिया कि वो कितनी डेवलप्ड और सिचुएटेड थी इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, है ना, ये बता दिया है। आफ्टर दैट फर्दर अब आगे बता रहा है कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी क्या डिफरेंट मेजर्स लिए थे, है ना, कि उनकी जो सिटी थी, है ना, अराउंड देयर सिटी सराउंडिंग में वो क्या किए थे ट्रोजन्स ने, है ना, वो जो ट्रोजन्स थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वॉल, बहुत मजबूत क्या किए थे, दीवार बनाए हुए थे, ताकि कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन उन पे अटैक ना कर सके फ्रॉम द सी, क्योंकि उसके सामने सी था, है ना, और वो सी के थ्रू फाइनल डायरेक्ट उस सिटी पे अटैक करना बहुत ईजी था, है ना, अटैक करना थ्रू द सी इट वॉज वेरी ईजी। सो अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट किए थे, वॉल बिल्ड किए थे। ओके, द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। और जो वॉल थी उसकी ब्रेथ इतनी ज्यादा थी कि लोग उस पर चल सकते थे, बैठ सकते थे, राइट, एंड स्टैंड वहाँ खड़े रह सकते थे। मतलब उसकी ब्रेथ यहाँ पे क्या की एक्सप्लेन की गई है कि वो छोटी सी वॉल नहीं थी, पतली सी, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी एंड इट वॉज वेरी ब्रॉड। The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. Okay. और जो ग्रेट गेट्स थे उसके वो वॉल में से मतलब अब वो वॉल थी तो कि लोग बाहर ना जा सके, है ना, और वहाँ बाहर का कोई अंदर ना आ सके, एनिमी अटैक ना कर सके, बट जाने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता तो होना चाहिए, है ना, तो बड़े बड़े गेट्स बनाए गए थे। द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर, और उसकी थ्रू ही कि पीपल क्या कर सकते थे, सी शोर के थ्रू, सी शोर तक जा सकते थे उसके थ्रू आउटसाइड, एंड कम इन एज दे प्लीज, और जब भी उनकी मर्जी हो वो वापस आ भी सकते थे उस ग्रेट गेट के थ्रू। ओके, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, बट इन द टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज, बट जब भी वॉर होती थी, है ना, ताकि एनिमी उसके थ्रू एंटर ना कर सके, है ना, वो क्या रहते थे, जो बड़े बड़े गेट थे वो कैसे रहते थे, क्लोज रहते थे, एंड देन सिटी वॉज लाइक अ क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक। और उस वक्त जब वो गेट क्लोज होते थे, वो जो सिटी थी वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, है ना, जहाँ पर वो फोर्ट्रेस जहाँ पे जनरली वॉर के थ्रू लोग क्या करते हैं, हाइड करते हैं, सेफ जगह पे रहते हैं ना, तो वो ऐसी बन जाती थी ताकि लोग है ना, जो एनिमी है वो अटैक ना कर सके, और वो जो अंदर सिटी के जितने भी पर्सन होते थे वो क्या होते थे, सेफ होते थे अटैक से, अटैक ऑफ एनिमी, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड। और इसके जो सराउंडिंग में वॉल बनाई गई थी और उसके बिहाइंड में जो माउंट ईडा के हिल माउंटेनियस रेंज थे, है ना, हिल थी, पीक थी, उसके वजह से वो क्या रहते थे, प्रोटेक्टेड रहते थे। अंडरस्टूड? Thus, Troy was a strong city. Okay, so looking all these concepts, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि जो ट्रॉय थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिटी थी फाइनेंशियली एज वेल एज
मतलब एनिमी से के अटैक से बचने के लिए भी वो मिलिट्री पावर के थ्रू भी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल एंड स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर्स, है ना। जो मिलिट्री पावर थी, सोल्जर पावर थी, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, है ना। जो स्ट्रॉन्ग वॉल थे उसके वजह से भी वो डिफेंड कर सकते थे खुद को, और वहाँ की जो सोल्जर्स थे वो भी काफी ब्रेव थे। But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans. But जो किंग एंड हीरोज थे ग्रीस के, उन्होंने किसके अगेंस्ट क्या किए थे, वॉर करना स्टार्ट कर दिए, ट्रोजान्स। बिकॉज अब उसका रीजन क्या था, बिकॉज पेरिस अ प्रिंस ऑफ Troy had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. Okay, अब देखो उनकी जो वॉर थी, as we have already mentioned, जो हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ओके, इट इज अबाउट अ वॉर बिटवीन द ग्रीक पीपल्स एंड द ट्रोजान्स, है ना। ग्रीक पीपल्स के बीच की और ट्रोजान के बीच की जो वॉर है उसके बारे में हम लोग पढ़ने पड़े, तो जो वो पढ़ने वाले, तो जो वो वॉर है एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, हेलन, जिसकी वजह से उनके बीच में वॉर हुई थी। तो वो क्यों हुई थी एक्चुअली में, जो प्रिंस था ट्रॉय का, है ना, जिसका नेम क्या था, पारिस, उसने क्या किया था, जो हेलन, जो किसकी वाइफ थी, ग्रीक किंग मेनोलियस की एक वाइफ थी, उसको क्या किया था, उसने कन्विंस किया था उसके साथ भाग जाने के लिए, मतलब वो उसको लेकर आ जाता है अपने साथ में। सो ही हैड ब्राउट हर टू ट्रॉय, मतलब वो कहाँ लेकर आता है उस हेलन को, अपने साथ में ट्रॉय लेकर आता है। सो द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज, अब वो ग्रीक्स थे, वो क्या करना चाहते थे, रिवेंज मतलब बदला लेना चाहते थे। They wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. Okay, तो जो उसने गलत किया गया था मेनेलस के साथ में, है ना, तो उसके लिए वो क्या करना चाहते थे, उससे रिवेंज लेना चाहते थे। They sailed to Troy and laid siege to the city. अब वो क्या करे, वो सेल मतलब वो ट्रैवल सॉरी शिप के थ्रू वो क्या करके आए, वो वहां से सी वॉयज कर आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर वहां पर सीज टू द सिटी, लेट सीज मतलब हमला कर देना किसी पर्टिकुलर जगह पे, है ना, वहां पर सिटी पे उन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया। द ट्रोजान्स टू फाउट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। ट्रोजान्स ने भी इस जो वॉर थी उसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से, बहुत ब्रेवली उन्होंने फाइट किया। जो उनकी वॉर थी वो कितने ईयर्स तक चली थी, इट लास्ट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। अब उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उस वॉर का, दैट इज गिवन फर्दर, ओके, सो दैट वी विल स्टडी इन टू द नेक्स्ट लेक्चर।